بھائی میں آپ کے میں گھر آپ کی کے گھر نوکرانی بن کر رہوں گی، لیکن میرے اس نوکرانی معصوم بن کر بچے کو اس رہوں گی، لیکن بارش میں سڑک پر میرے اس مرنے مت معصوم دیں۔ بچے کو میں نے تجھے بارش میں اسی دن سڑک پر کہہ مت دیا تھا مرنے کہ دو۔ میری چوکھٹ پر اپنا یہ منحوس چہرہ کبھی مت میں نے دکھانا، تجھے اسی نکلو دن اس گھر میں تمہاری کوئی کہہ جگہ دیا تھا نہیں ہے۔ میری چوکھٹ پر میری مدد کر میرے مولا، مولا اپنا میری منحوس مدد کر۔ چہرہ دوستو آج کی کبھی مت کہانی دیکھانا۔ ایک ایسی بے سہارا عورت کی ہے جس کے سر سے جب اس کے شوہر کا سایہ اٹھا تو وہ اپنے سگے اور دولت مند بھائی راشد کے دروازے پر پناہ مانگنے گئی، لیکن اس گھمنڈی بھائی نے آدھی رات کو اس بھیانک برستی بارش میں اپنی سگی بہن اور اس کے بھوکے یتیم بچے کو دھکے مار کر اندھیری سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس رات ایک عجیب رکشے والے نے وہ کیا جو ایک سگا بھائی نہ ہو کر بھی نہ کر سکا، بھائی سے بھی زیادہ کیا۔ سالوں بعد جب اسی گھمنڈی بھائی کی پوری سلطنت جل کر راکھ ہو گئی تو قسمت نے ایک ایسا دن دکھایا جسے دیکھ کر سب کی روح کانپ جائے گی۔ کیا عائشہ نے اپنے بھائی کو معاف کیا یا اللہ کی لاٹھی نے اپنا کام کر دکھایا تھا؟ عائشہ کی زندگی کبھی بہت سکون سے گزر رہی تھی۔ اس کے شوہر ایک بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ طارق کی کمائی بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کے گھر میں برکت بہت تھی۔ وہ 5 وقت کے نمازی تھے اور حلال کی روزی کما کر اپنے چھوٹے سے پریوار کو خوشی سے پال رہے تھے۔ عائشہ اور طارق کا ایک 5 سال کا بیٹا تھا جو ان دونوں کی آنکھوں کا تارا تھا۔ عائشہ کو اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہ ہوتی تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان سوچتا کچھ اور ہے اور اللہ کی رضا کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ ایک دن اچانک طارق کے سینے میں تیز درد اٹھا۔ اس سے پہلے کہ عائشہ کچھ سمجھ پاتی یا کسی ڈاکٹر کو بلا پاتی، وہ طارق دنیا کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ عائشہ کی تو جیسے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ جس انسان کے سائے میں اس نے اپنا دکھ سکھ دیکھا تھا وہ سایہ ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا تھا۔ طارق کے جنازے کے بعد عائشہ اس چھوٹے سے کرائے کے مکان میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ اس کے پاس نہ تو بینک میں کوئی بھاری رقم تھی اور نہ ہی کوئی ایسی جائیداد جس کو بیچ کر وہ اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پال سکے۔ کچھ دن تو وہ پڑوسیوں نے کھانا بھجوایا، لیکن دنیا کا دستور یہی ہے کہ کوئی بھی کسی کا بوجھ عمر بھر نہیں اٹھاتا۔ طارق کے انتقال کو ابھی مشکل سے 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ گھر خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ مکان مالک ایک بہت ہی بے رحم انسان تھا جس نے عائشہ کے آنسوؤں سے بھری آنکھوں اور معصوم بچے کے چہرے پر ذرا بھی ترس نہ کھائے۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اگر آج رات تک گھر خالی نہیں کیا تو وہ ان کا سارا سامان سڑک پر پھینک دے گا۔ عائشہ کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ آسمان پر گھنے کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور پھر ٹھنڈی ہوائیں کسی آنے والے طوفان کا اشارہ کر رہی تھی۔ عائشہ نے اپنے پرانے کپڑے میں اپنا تھوڑا بہت سامان باندھ لیا۔ وہ گھر کی دہلیز پر کھڑی ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جہاں اس نے اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت پل گزارے تھے۔ جب انسان ہر طرف سے بے بس ہو جاتا ہے تو اسے اپنوں کی یاد آتی ہے۔ عائشہ کو اپنے سگے بھائی ارشد کی یاد آئی، اور ارشد شہر کا ایک بہت بڑا امیر کاروباری تھا۔ اس کے کپڑے کی ایک بہت بڑی فیکٹری تھی اور وہ ایک عالیشان محل جیسے گھر میں رہتا تھا۔ لیکن جب عائشہ نے طارق جیسے غریب آدمی سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تو ارشد نے اپنے غرور اور دولت کے گھمنڈ میں آ کر عائشہ سے سارے رشتے توڑ لیے تھے۔ اس نے عائشہ سے کہا تھا کہ آج کے بعد تو نے میرے گھر کی طرف رخ بھی کیا تو میں تیرے پیر توڑ دوں گا، کیونکہ تو نے غریب سے شادی کر کے میری عزت مٹی میں ملا دی ہے۔ لیکن آج 5 سال کے بعد معصوم اور یتیم بچے کے ساتھ لیے اپنے بھائی کے دروازے پر وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ جو بھوک اس نے اپنے بچے کی خاطر جھیلی تھی، ہر غرور، ہر گناہ ثواب اب اس کو عجیب لگ رہا تھا۔ عائشہ نے اللہ کا نام لیا اور امان کی انگلی پکڑ کر اس اندھیری سڑک پر نکل پڑی جو ارشد کے محل کی طرف جاتی تھی۔ آسمان سے اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ بجلی کی کڑکتی ہوئی آوازیں امان کو ڈرا رہی تھی۔ عائشہ نے اپنی پرانی چادر سے امان کو ڈھک لیا تھا تاکہ وہ بارش سے بچ سکے، لیکن بارش اتنی تیز تھی کہ ان کا روم روم پانی سے بھیگ گیا۔ سڑک پر کیچڑ کئی بار ٹھوکر کھا کر گری، لیکن وہ ہر بار اپنے بچے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی۔ اس کے پیروں میں کانٹے چبھ رہے تھے، لیکن اس کے دل کا درد ان کانٹوں سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ ارشد چاہے اسے کتنی بھی گالیاں دے لے، اسے کتنا بھی ذلیل کر لے، لیکن وہ اس کے معصوم بچے کو اس خوفناک بارش میں گھر سے باہر نہیں نکالے گا۔ آخر وہ اس کا سگا بھائی تھا، ایک ہی ماں کا دودھ پیا تھا۔ دونوں نے کافی دیر تک اس بھیانک جگہ پر سفر کرتے رہے، یعنی بھیانک موسم میں۔ آخر کار ارشد کے عالیشان بنگلے کے باہر پہنچ گئے۔ اس بنگلے کی اونچی دیواریں اور لوہے کا بھاری دروازہ ارشد کی دولت کی گواہی دے رہا تھا۔ عائشہ نے کانپتے ہاتھوں سے اس بھاری لوہے کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ گیٹ پہ کھڑے گارڈ اپنی چھتری سے باہر جھانک کر دیکھے، ایک بھیگی ہوئی عورت ایک بچے کو لے کر کھڑی تھی۔ گارڈ نے سختی سے پوچھا، تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ یہ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ عائشہ نے روتے ہوئے کہا، مجھے ایک بار بس اپنے بھائی سے ملنے دو۔ گارڈ کو عائشہ کی بات پر یقین نہیں ہوا، کیونکہ ارشد صاحب کی بہن ایسی بھکاری جیسی حالت میں نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ باہر؟ ایک عورت کھڑی خود کو آپ کی بہن بتا رہی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ باہر سے دروازہ کھلا اور ارشد اپنی مہنگی ریشمی شال اوڑھے ہوئے باہر آ میں نے کھڑا تجھے ہو گیا۔ اسی اس دن کے چہرے پر غصہ اور گھمنڈ کہہ دیا صاف تھا میری دکھائی دے چوکھٹ رہا پر تھا۔ عائشہ اپنے بھائی کو دیکھتے پھوٹ پھوٹ کر
रो पड़ी, इसके पैरों के पास गिरी। इसने रोते हुए कहा, भाई मेरे साथ मुझे छोड़कर मेरा शौहर चला गया है, वो मैं बेवा हो गई, मेरा ये यतीम बच्चा 2 दिन से भूखा है। मालिक मकान के घर से हमें निकाल दिया गया, खुदा के वास्ते आज रात हमें अपने घर के किसी कोने में बना दे दीजिए, मुझे आज रात के लिए पनाह दे दे, मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊँगी, मैं तुम्हारी नौकरानी बन कर रहूँगी, लेकिन मेरे इस मासूम बच्चे को इस बारिश में सड़क पर मत मरने दो। अरशद अपनी बहन को पैरों से पर फेंका। दौलत ने इसके दिल को पूरी तरह पत्थर बना दिए थे। इसने आयशा को अपने पैरों से दूर धक्का दिया और बहुत ही सख्त और नफरत भरी आवाज़ में कहा, तू मेरी बहन उसी दिन मर गई थी जिस दिन तूने इस भिखारी तारिक से निकाह किया था। मैंने तुझे उस दिन कह दिया था, मेरी चौखट पर अपना ये मनहूस चेहरा कभी मत दिखाना। याद रख, इस घर में तेरे और तेरे इस बच्चे के लिए कोई जगह नहीं है। भाग जा यहाँ से, दोबारा इस मोहल्ले में भी नजर ना आना। ये वही भाई था जिसने इसके साथ मिलकर बचपन में एक ही थाली में खाना खाया था। इसने अपने भाई के सामने हाथ जोड़े, वास्ते दिए, कोई मुझ पर रहम करो, इस मासूम बच्चे पर। भाई तुम जो चाहे सजा दे लो, लेकिन एक बच्चे पर रहम करो। अगर तुम हमें बाहर निकाल दोगे तो ये मर जाएगा। लेकिन अरशद के दिल में शैतान आ चुका था। उसने अपने गार्ड को हुक्म दिया कि इस औरत को और इसके बच्चे को धक्के मारकर गेट के बाहर फेंक दो। गार्ड ने आयशा को बाजू से पकड़ा, उसे बेदर्दी से धक्का मारकर इस भारी बारिश में लोहे के गेट के बाहर सड़क पर फेंक दिया। अमान डर के मारे जोर जोर से रोने लगा। आयशा कीचड़ में गिर पड़ी। पीछे से भारी लोहे का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। अब आयशा इस कीचड़ से भरी सड़क पर आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से रोने लगी। इसने अपने दोनों हाथ जोड़े, आसमान की तरफ उठाए और फूट फूट कर रोते हुए दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे यतीम बच्चे का तू ही वारिस है। दुनिया वालों ने अपने दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए, लेकिन तेरी रहमत का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। मेरी मदद कर मेरे मौला, मेरी मदद कर। इसकी दर्द भरी चीख और आंसुओं की धार उस रात बारिश से भी ज़्यादा भारी थी। अमान ठंड और बुखार से थर थर काँप रहा था। आयशा ने इसे अपने सीने से लगा लिया और सड़क के किनारे एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर अपनी तकदीर पर रोने लगी। तभी इस खड़े पानी में साइकिल रिक्शा के घंटे की आवाज़ सुनाई दी। बहुत ही गरीब और बूढ़ा रिक्शे वाला था जिसका नाम रहीम था। रहीम के कपड़े फटे हुए थे और दिन भर की मेहनत के बाद अपने टूटे हुए घर की तरफ लौट रहा था। जब इसने उस पेड़ के नीचे एक औरत और मासूम बच्चे को रोते देखा तो इसने अपना रिक्शा रोक दिया और पास आया। इसने बहुत ही नरमी से पूछा, तुम कौन हो? इस तूफान में इस छोटे से बच्चे को लेकर यहाँ सड़क पर क्या कर रही हो? उस अजनबी रिक्शा वाले को इसने अपनी दास्तान सुनाई। रहीम की दाढ़ी सफ़ेद थी, इसके चेहरे पर नमाज का नूर झलकता था। इसकी आंखें आयशा की कहानी सुनकर नम हो गई। इसने कहा कि बेटी, जिनके सगे भाई दौलत के नशे में अंधे हो जाते हैं, अल्लाह उनके लिए गरीब गैबों से फरिश्ते भेज देता है। बात मेरी ये है कि तू मेरी बेटी और ये यतीम बच्चा मेरा पोता है। जब तक इस रहीम के शरीर में जान है, तुम दोनों को कभी सड़क पर सोने नहीं दूंगा। बेटी, अल्लाह के लिए मेरे रक्षे में बैठ जाओ। आयशा को ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने सच में इसकी दुआ सुन ली है। इस बूढ़े गरीब इंसान के रूप में आसमान से कोई फरिश्ता उतार दिया है। आयशा मान को गोद में लेकर इस पुराने रिक्शे में बैठ गई। रहीम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इस तेज़ बारिश और कीचड़ वाली सड़क पर रिक्शा चलाना शुरू किया। काफ़ी देर बाद वो एक बहुत ही करीब और तंग बस्ती में एक छोटी सी झोपड़ी के सामने रुका। ये रहीम का घर था। घर की हालत ख़राब थी। घर के अंदर जो इंसानियत का उजाला था वो अरशद के इस करोड़ों के महल से कहीं ज़्यादा रोशन था। रहीम की बेगम फातिमा ने दरवाज़ा खोला। जब इसने एक भीगी हुई औरत और एक कांपते हुए बच्चे को देखा, इसने फ़ौरन उन्हें अंदर बुला लिया। फातिमा से कोई सवाल न पूछा, इसने अपनी एक पुरानी लेकिन साफ साड़ी आयशा को पहनने के लिए दी और अमान को एक सूखे तौलिए से पूछ कर इसे गर्म कंबल में लपेट दिया। घर में खाने को कुछ ज़्यादा ना था, बस चंद रोटियां और थोड़ा सा दूध था जो फातिमा ने अपने और रहीम के लिए रखा था। लेकिन फातिमा ने बिना एक पल सोचे वो गर्म दूध करके अमान को पिला दी और खुद सूखी रोटियां आयशा के सामने रख दी। आयशा इस गरीब जोड़े की इस दरिया दिली को देखकर रो पड़ी। इसने कहा, खुद भूखे रहने वालों हमें खिला रहे हो। यतीम को खाना खिलाने से रिस्क में कमी नहीं आती, बल्कि अल्लाह इस घर में अपनी बरकतें नाजिल करता है। तुम लोग अल्लाह के मेहमान हो। आज इस रात से आयशा ने अपने अमान को सीने से लगाकर बहुत सुकून की नींद ली, क्योंकि इसे यकीन हो गया क्या था कि दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा। अगली सुबह से आयशा की एक नई ज़िंदगी शुरू हुई। इसने तय किया कि वह रहीम चाचा और फातिमा खाला पर बोझ नहीं बनेगी। आयशा को सिलाई कढ़ाई का बहुत काम अच्छा आता था। इसने पड़ोस की औरतों से पुरानी मशीन मांगकर कपड़े सीने का काम शुरू कर दिया। रहीम जब अपना रिक्शा लेकर बाजार जाता तो वहाँ की दुकानों में वो कपड़े बेचने लगा। आयशा की नीयत साफ थी और इसके हाथों में अल्लाह ने बहुत बरकत रखी थी। इसके सिले हुए इन कपड़ों की बाजार में बहुत मांग होने लगी। धीरे धीरे उनके पास कुछ पैसे जुड़ने लगे। आयशा ने इन पैसों में सबसे पहले अमान का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाया। वो दिन रात एक करके मेहनत करती, सुबह बाजार नमाज की पढ़कर कुरान की तिलावत करती और फिर अपनी सिलाई मशीन पर बैठ जाती। रात गए तक वो बराबर काम करती ताकि इसके बच्चे को और इस बूढ़े फरिश्ते को कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। फातिमा और रहीम ने अमान को अपने
बहुत इज्जत और अपनायत दी, क्योंकि वो बहुत ज़हीन और नेक लड़का था। वो अपनी माँ की तरह मेहनत और रहीम चाचा की कुर्बानियों को देखकर बड़ा हो रहा था। इसने बचपन में ठान लिया था कि वो एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा और अपनी माँ के सारे दुख दूर करेगा। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। साल बीत गए। अब अमान एक खूबसूरत, बहुत ही काबिल नौजवान बन चुका था। इसने अपनी तालीम पूरी की और एक छोटी सी कपड़े की दुकान से अपना कारोबार शुरू किया। अमान के कारोबार की कभी नाप तोल में बेईमानी नहीं करता था और अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा गरीबों और यतीमों में सदका करता था। अल्लाह ने उनके हलाल रिस्क में ऐसी बरकत दी कि इसकी एक छोटी सी दुकान देखते ही देखते शहर के सबसे बड़े गारमेंट एम्पायर में बदल गई। ईमान ने अपनी माँ के लिए एक बहुत ही खूबसूरत आलीशान घर बनवाया। आयशा एक बहुत ही अमीर और रुतबे वाली खातून बन चुकी थी, लेकिन इसने अपना वो पुराना सब्र और नमाज की पाबंदी, हमेशा गरीबों की मदद, वो कायम रखा। अमान ने रहीम चचा और फातिमा खाला को अपने साथ इसी महल में रखा, लेकिन कुछ समय बाद रहीम और फातिमा अपनी उम्र पूरी करके इस दुनिया से पर्दा कर गए। आयशा ने उनका जनाजा बिल्कुल अपने सगे माँ बाप की तरह उठवाया और उनके लिए हमेशा सदका जारिया करती रही। दूसरी तरफ उसके घमंडी भाई अरशद की दुनिया में सब कुछ बदल रहा था। अरशद का कारोबार बहुत फैल चुका था, लेकिन इसकी दौलत ने इन गरीबों को ज़कात देना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो अपने मजदूरों पर बहुत जुल्म करता, उनकी दिहाड़ी काट लेता और उन्हें जानवरों की तरह काम करवाता। जब कोई गरीब उनसे मदद मांगने आता तो इसे गालियाँ देकर भगा देता। इसे लगता था कि ये दौलत हमेशा इसके पास रहेगी और कोई इसे मिटा नहीं सकता। लेकिन अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जब खुदा की पकड़ आती है तो इंसान का बड़े से बड़ा महल भी कांच की तरह टूट फूट जाता है। अरशद अपनी फैक्ट्री का मुनाफा हिसाब लगाकर अपने आलीशान कमरे में मज़े की नींद सो रहा था। अचानक आधी रात को इसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन इसके फैक्ट्री के चौकीदार का था। चौकीदार ने बताया कि साहिब फैक्ट्री में एक बहुत ही भयानक आग लग गई और पागलों की तरफ अपनी गाड़ी लेकर फैक्ट्री की तरफ दौड़ा। जब वहां पहुंचा तो इसकी करोड़ों की लागत वाली वो आलीशान फैक्ट्री आग के खौफनाक शोले में घिरी हुई थी। आसमान तक इस पूरे गरूर को चिल्लाकर राख कर रही थी और फिर गाड़ियां जो आग बुझाने आई थी वो भी नाकाम साबित हो रही थी। आग इतनी शदीद थी कि इसने गोदाम में रखा सारा माल, नई मशीन और सारे ज़रूरी कागजात कुछ ही घंटों में राख में बदल दिए। सुबह होते अरशद की पूरी सल्तनत एक काले और सुलगते हुए खंडर में बदल चुकी थी और शायद सड़क पर घुटनों के बल बैठकर अपने बाल नोच नोच कर रो रहा था। इसने याद आया कि इसने बाजार से बहुत बड़ा कर्ज उठाया हुआ था। कुछ ही दिनों में इसके सारे कर्जदार इसके घर के बाहर खड़े हो गए। अरशद ने जिनसे पैसा लिया था वो सब बहुत ही ताकतवर और ख़तरनाक लोग थे। अरशद की सारी दौलत, रिश्तेदार जो इसकी दौलत के भूखे थे, उन्होंने एक पल में इससे मुंह मोड़ लिया और जब अरशद ने इनसे मदद मांगी तो सबने अपने दरवाजे बंद कर दिए। कर्ज उतारने के लिए अरशद को आखिरकार नीलाम करनी पड़ गई। जिस बंगले के दरवाजे से इसने अपनी सगी बेवा बहन को धक्के मार मार कर बाहर निकाला था, आज उसी दरवाजे से इसे खुद बेघर होकर बाहर निकलना पड़ा। किस्मत का पहिया पूरी तरह घूम चुका था। अब अरशद के पास ना तो रहने को कोई घर था और फिर ना ही कोई ठिकाना, न खाने को रोटी, न पहनने को अच्छे कपड़े। वो दर दर की ठोकरें खाने लगा। कभी किसी मस्जिद के बाहर से होता तो कभी सड़क के किनारे। भूख और बीमारी ने इसे पूरी तरह तोड़ दिया था। इसके कपड़े बिल्कुल एक भिखारी जैसे हो गए थे। रमज़ान का मुकद्दस महीना शुरू हो चुका था और पूरे शहर में रहमतों और बरकतों का माहौल था, लेकिन अरशद के लिए हर दिन अजाब की तरह गुजर रहा था। इसने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया था और भूख से इसके पेट में मरोड़ उठ रहे थे। वो लड़खड़ाते हुए सड़क पर चल रहा था। तभी इसे किसी ने बताया कि इस शहर के सबसे बड़े और अमीर कारोबारी अमान साहब की हवेली पर हर रोज़ गरीबों और यतीमों को खाना दिया जा रहा है। अरशद को अमान का नाम तो मालूम था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये वही अमान है जिसने इसने कभी अपनी चौखट से धक्के मारकर निकाला था। भूख से लाचार अरशद अपने फटे हुए कपड़ों और बिखरे हुए बालों के साथ इस हवेली की तरफ चल पड़ा, जहाँ सैकड़ों गरीबों की लाइन लगी हुई थी। जब अरशद की बारी आई तो वो हवेली के इस बड़े से गेट के अंदर दाखिल हुआ, जो एक खूबसूरत नौजवान अपने हाथों से लोगों को राशन दे रहा था। नेक खातून कुर्सी पर बैठी बांट रही थी। अरशद ने राशन का थैला लेने के लिए अपने दोनों हाथ आगे फैलाए तो अमान की नज़र इस आदमी के चेहरे पर पड़ी। अरशद ने भी अपना सर ऊपर उठाया। वक्त जैसे वहीं थम गया। अमान ने अपने जालिम मामू का चेहरा पहचान लिया, जिसने इसकी माँ को इस तूफानी रात में खून के आंसू रुलाया था। उधर अरशद की नज़र जब कुर्सी पर बैठी इस खातून पर पड़ी तो इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ अरशद के हाथ से राशन का थैला ज़मीन पर गिर पड़ा। शर्मिंदगी और पछतावा ने इसके दिल को छलनी कर रख दिया। अरशद बिना कुछ सोचे आयशा के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा, मुझे माफ़ कर दे मेरी बहन, अल्लाह ने मुझे मेरे गरूर की बहुत भयानक सज़ा दी है। मैं तेरा बुजुर्ग हूँ। अरशद की बात सुनकर अमान का खून खौल रहा था। अरशद की बात कुछ ठीक थी सुनकर अमान का खून खौल रहा था। इसने अरशद को धक्के मारकर बाहर निकालने का इरादा किया ताकि वो अपना बदला ले सके, लेकिन तभी आयशा अपनी कुर्सी से उठी। अमान को रोकने का इशारा करते हुए अपने उस भिखारी भाई के वो हाथों से सहारा देकर ज़मीन से उठाया जिसने कभी इसे सड़क पर फेंक दिया था। आयशा ने कहा, भाई हमारा मज़हब हमें नफ़रत का बदला रहम और माफ़ी से देना सिखाता है। आयशा ने अपने भाई के जोड़े हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगी, मेरे भाई, मेरे
اور پھر بیٹے سے کہنے لگی اپنے ماموں کو گلے لگاؤ، گھر لے چلو۔ گھر آ گئی، اچھے کپڑے پہنائے، اپنے ساتھ ہی رکھ لیا۔ امان نے بھی اپنی ماں کی نیکی دیکھ کر اپنے ماموں کو گلے لگا لیے۔ کچھ دن گزرے تو راشد کی حالت بہتر ہو گئی۔ اس کا علاج کروا کے جب وہ ٹھیک ہو گیا تو امان نے اپنے ساتھ اپنے پلازے میں ایک منیجر کی پوسٹ پر رکھ لیا۔ وہ دونوں بہن بھائی اور امان خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ دن گزر رہے تھے، امان کے لیے خوبصورت رشتہ دیکھ کر اپنے امان کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ دوستو، یہ کہانی میں سبق سکھاتی ہے کہ دولت اور طاقت کا گھمنڈ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، لیکن جب خدا کی لاٹھی چلتی ہے تو انسان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ زندگی میں کبھی کسی غریب کو حقیر مت سمجھنا اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ معاف کر دینا اللہ کی سب سے پسندیدہ صفت بھی یہی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ عائشہ کے صبر کی اس کہانی کو ضرور آپ کے دل نے چھوا ہوگا۔